كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پیارے نبی سے عرض کیا، اللہ کے نبی ایک غریب خاتون آئی تھی اپنی 2 بھوکی بچیوں کو لے کر، اس نے کھانے کے لیے کچھ مانگا، 3 کھجوریں ملی، 2 کھجوریں اس نے اپنی بچیوں کو کھلا دی، اور اپنے حصے کی کھجور جب اس نے کھانی چاہی بچیوں نے وہ بھی مانگ لیا، ماں بھوکی رہ گئی اور اس کھجور کو بھی اپنی بچیوں کو کھلا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ جانتی ہو اس ایک کھجور نے اس ماں کو نار جہنم سے آزادی دلا دی، اس ایک کھجور نے اس ماں کو نار جہنم سے آزادی دلا دی۔ جذبہ غمخواری کی اہمیت شریعت کی نظر میں، غریبوں سے ہمدردی کی اہمیت شریعت کی نظر میں، یاد رکھنا محترم بھائیوں، دنیا کی بہت بڑی دولت کیا ہے کہ تمہارے دل کی دھڑکنوں میں غریبوں کا درد ہونا چاہیے۔ اقبال نے کہا تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. آج کے اس عظیم الشان اجلاس کے صدر مولانا فضل الرحمان عمری صاحب، اسٹیج کی زینت بنے تمام بھی معزز علماء، حدیث وعظات کے محترم ذمہ داران، شرکاء اجلاس اور پردہ نشین خواتین اسلام، مثالی معاشرے کے عنوان سے آج کی ہماری ایک کانفرنس منعقد ہوئی ہے۔ صبح سے اب تک ہم نے بڑے مفید خطابات سنے ہیں، مجھے بھی اسی موضوع سے متعلق ایک کڑی پر روشنی ڈالنی ہے۔ منتظمین اجلاس نے میرے لیے جو عنوان تجویز کیا وہ عنوان ہے کہ مثالی معاشرے کے قیام کے بنیادی اصول۔ حضرات، معاشرہ اور سماج جس میں کہ ہم جیتے ہیں، اس کے ماحول کو مثالی بنانا، اچھا بنانا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم صرف اپنی ذات کی حد تک رہے کہ میں اچھا ہو جاؤں گا، میں نیک بن جاؤں گا، میرا گھر نیک بن جائے گا، میرے بیوی بچے نیک بن جائیں گے،
اور سماج کی فکر نہ کریں ہم، معاشرے کی فکر نہ کریں ہم، تو پھر اس کی قیمت ہمیں یوں چکانی پڑے گی کہ ہماری آنے والی نسلیں معاشرے کے اثرات قبول کر کے دین بیزار ہو سکتی ہیں، دین سے دور ہو سکتی ہیں، گمراہی کے راستے پر چل سکتی ہیں۔ اس لیے ہر دیندار، دین پسند، دین سے محبت کرنے والے مسلمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ پورے سماج کو بدلنے کی کوشش کرے، پورے سماج کی اصلاح کی کوشش کرے، پورے سماج کی اصلاح کی طرف اس کے دل میں ہو، تاکہ آنے والی نسلوں کے ایمان، عقیدے اور اخلاق کی ضمانت ہم دے سکیں۔ حضرات، آج میں اپنی اس تقریر میں، اپنے اس خطاب میں کچھ ایسے بنیادی نکات کی طرف اشارہ کرنے جا رہا ہوں کہ کسی بھی معاشرے اور سماج کو مثالی بنانے کے لیے وہ بنیادیں کیا ہیں کہ اگر معاشرہ ان بنیادوں پر قائم ہوتا ہے تو اس معاشرے کو ہم مثالی معاشرہ کہہ سکتے ہیں، آئیڈیل سماج کہہ سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آئیے سب سے پہلی بات اور سب سے پہلا نقطہ جہاں سے میں اپنی بات شروع کرنا چاہوں گا کہ دیکھو، کوئی بھی سماج، کوئی بھی معاشرہ اسلامی نقطہ نظر سے اگر وہ مثالی کہلانا چاہتا ہے تو اس کی اولین شرط یہ ہے کہ اس سماج کی ایمانی تربیت کی جائے۔ ایمانی تربیت، جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی 13 سالہ زندگی میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تربیت تھی۔ 13 سال آپ کا پورا فوکس ایمانی تربیت پہ تھا۔ حلال، حرام، جائز، ناجائز، یہ سارے احکامات مدینے کے 10 سال میں آئے۔ جماعت کی نماز کا حکم مدینے میں آیا، زکوٰۃ مدینے میں فرض ہوئی، روزے مدینے میں فرض ہوئے، حج مدینے میں فرض ہوا، نکاح، طلاق، خلا کے مسائل مدینے میں آئے، بیع و شراء، خرید و فروخت کے احکامات مدینے میں بتائے گئے۔ سارا کا سارا دین مدینے میں، اور مکے کے 13 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا جو موضوع رہا وہ یہی اصحاب رسول کی ایمانی تربیت، ان کے دلوں میں ایمان کو راسخ کرنا، ایک پوری مومن نسل کو تیار کرنا۔ تو اصلاح سماج اور مثالی معاشرے کے سلسلے میں پہلا اور اولین قدم یہ ہونا چاہیے کہ معاشرے کی ایمانی تربیت کی فکر کی جائے۔ اور ایمانی تربیت کا تقاضا یہ ہے کہ معاشرہ توحید پرست ہو، مظاہر شرک سے معاشرہ پاک ہو، معاشرے میں دربار نہ ہو، جھنڈے نہ ہو، آستانے نہ ہو، گنبد نہ ہو، قبے ابے نہ ہو، معاشرہ صرف اللہ کا غلام ہو، اللہ کی غلامی کا توق اس نے اپنے گلے میں ڈالا ہو، اللہ الہ واحد کا غلام بن کر غیر اللہ کی غلامی سے 1000 بار انکار کرتا ہو۔ باطل کی خدائی کا انکار کیا ہم نے، باطل کی خدائی کا انکار کیا ہم نے، یہ جرم اگر ہے تو 100 بار کیا ہم نے، یہ جرم اگر ہے تو 100 بار کیا ہم نے۔ دوسرا تقاضا یہ ہے ایمانی تربیت کا کہ معاشرے کا پورا سرمایہ توکل ہو، معاشرے میں جادوگروں کے لیے کوئی جگہ نہ ہو، ساحروں کے لیے کوئی جگہ نہ ہو، نجومیوں کے لیے کوئی جگہ نہ ہو، کاہنوں کے لیے کوئی جگہ نہ ہو، شعبدہ بازوں کے لیے کوئی جگہ نہ ہو۔ یہ ایمان کے لٹیرے ہیں، یہ ایمان لوٹنے والے ہیں، یہ ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے والے ہیں۔ ان کے فتنوں سے معاشرہ پاک ہو اور سماج کا پورا دار و مدار اللہ پر توکل ہو۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ہر معاملے میں اللہ پہ توکل کرو اگر واقعی تم مومن ہو۔ اور اس ایمانی تربیت کا تیسرا تقاضا یہ ہے کہ معاشرے کے ایک ایک فرد کی تربیت اللہ کے خوف کے سائے میں اس کی تربیت کی جائے، اللہ کی خوف کا احساس ایک ایک دل میں پیدا کیا جائے۔ معاشرے کا ہر فرد اللہ سے ڈرنے والا، معاشرے کا ہر مرد، معاشرے کی ہر عورت، معاشرے کا ہر بچہ، معاشرے کا ہر جوان اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ سماج کے ایک ایک فرد کے ذہن میں یہ احساس ہو کہ ہم اللہ کی نگرانی میں ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں سن رہا ہے۔ اس احساس کے سائے میں سماج کی اور معاشرے کے ایک ایک فرد کی زندگی گزرتی ہو۔
अहद मदनी का मुआशरा आप देखिए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में गुनाह कहाँ हुआ? एक साहब से मदीने के किनारे, जहां कोई देखने वाला ना था, उन्हें कोई देखने वाला ना था, एक गुनाह हो गया, एक गलती हो गई। हुआ ये कि एक औरत के साथ कुछ गलत काम उन्होंने कर लिया। हाँ, बड़ी बुराई तो न की, बड़ी बुराई न की, लेकिन बुराई के जो मुकद्दिमात होते हैं वो गुनाह उनसे हो गया। कहां गुनाह हुआ? तन्हाइयों में हुआ, जहां कोई देखने वाला ना था। वो साहब सीधे मस्जिद नबवी आते हैं और आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, इन्नी आलजतु इम्राअतन फी अक़सल मदीना व इन्नी असब्तु मिनहा मा दून अन अमस्सहा। अल्लाह के नबी, मदीने के किनारे तन्हाइयों में आज मुझसे गुनाह हो गया है, गलती हो गई है, बेचैन हो, तड़प रहा हूं, मुझे पाक कर दीजिए ना इस गुनाह के धब्बे से। मैं जिस सजा का मुस्तहिक हूं वो सजा दे दीजिए और मुझे पाक कर दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो इकरार कर रहे हैं। इतने में जोहर की नमाज का वक्त हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजान देने का हुक्म दिया, अजान हुई, नमाज पढ़ाई और नमाज खत्म हुई, फिर से उठ खड़े हुए, फिर से उठ खड़े हुए, पूरी जमात के सामने कहा, अल्लाह के नबी, मैंने गुनाह किया है, मुझे सजा दे दीजिए, सजा देकर गुनाह के इस धब्बे से पाक कर दीजिए। गौर कीजिए ना, गुनाह कहां हुआ है? गुनाह तन्हाइयों में हुआ है। किसी ने देखा है क्या? किसी ने नहीं देखा है। किसी ने इनको यहां बुलाया क्या? किसी ने नहीं बुलाया है। फिर क्यों आए हैं? ईमान, अल्लाह का खौफ, आखिरत की जवाबदही का एहसास। कोई देखा नहीं है, लेकिन उनका जो ईमान है कि आखिरत के में अल्लाह के सामने खड़े होना है, जिंदगी के एक एक अमल का जवाब हमें देना है, ये एहसास उन्हें तड़पा रहा था। इंसान थे, गलती हो गई, अब चाह रहे थे कि किसी भी कीमत सजा पाकर इस गलती के धब्बे से, गुनाह से पाक हो जाए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा सजा किस लिए दी जाती है, ताकि नदामत पैदा हो मुजरिम के अंदर। प्यारे नबी ने देखा कि सजा दिए बगैर ही ये नदामत पैदा हो चुकी है। इससे बड़ी बात क्या है? वो अपनी इज्जत का भी नहीं सोच रहे, पूरी जमात के सामने खड़े होकर इकरार कर रहे हैं, एतराफ कर रहे हैं, कह रहे हैं मुझसे गुनाह हो गया, सजा दे दीजिए मुझे। ये नहीं सोचा लोग क्या बोलेंगे, मैं बदनाम हो जाऊंगा, मेरी इज्जत चली जाएगी, जलील हो जाऊंगा। उन्हें जलील होना मंजूर था, लेकिन अल्लाह का खौफ सताए जा रहा था, अल्लाह का खौफ तड़पाए जा रहा था। तो हजरात, समाज की जब ईमानी तरबियत हो जाती है ना, ऐसे समाज में किसी महकमा तहकीक की जरूरत नहीं होती। वहां मुजरिम खुद आगे बढ़ के इकरार करता है कि मैं मुजरिम हूं, मुझसे जुर्म हुआ है। वहां तहकीक के लिए कोई कमेटी बिठाने की जरूरत नहीं होती। वहां ईमान उसे आमादा करता है, ईमान उसे ये कहता है कि जो गुनाह तुमसे हुआ उसका इकरार करो, एतराफ करो। तो हजरात, ये पहला नुक्ता है, ये पहला कदम है। मिसाली समाज की तामीर ईमान रासिख के बगैर नामुमकिन है, अकीदे सहीहा के बगैर नामुमकिन है, अकीदे तौहीद के बगैर नामुमकिन है। मिसाली समाज चाहते हो, मिसाली मुआशरा चाहते हो, तो फिर पूरे समाज की तरबियत, ईमानी तरबियत बहुत जरूरी है। ये पहली चीज। ईमानी तरबियत के बाद भाइयों, दूसरा कदम, किसी भी समाज और मुआशरे को मिसाली बनाने के लिए मुआशरे की अखलाकी तरबियत, मुआशरे की अखलाकी तरबियत। ईमान के बाद अखलाक का दर्जा आता है। समाज तभी मिसाली कहलाएगा जब ईमान और अकीदे के बाद अखलाक का उन्सुर भी उसके अंदर पाया जाता हो। और जब हम अखलाक की तरबियत की बात करें ना, तो इसके कई पहलू सामने आते हैं हमारे। उसमें सबसे पहले मुआशरे की अखलाकी तरबियत का पहला तकाजा यह है कि पूरे समाज में मुसावात को आम किया जाए। मुसावात और बराबरी की वो तालीम जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अल्फाज में दी, ला फज़्ल लिअरबिय्यिन अला अजमी वला लिअजमिय्यिन अला अरबी
वला लिअहमर अला अस्वद वला लिअस्वद अला अहमर कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब। आपने कहा लोगों, किसी अरबी को अजमी पर कोई फजीलत नहीं, किसी अजमी को अरबी पर कोई फजीलत नहीं, किसी काले को गोरे पर कोई फजीलत नहीं, किसी गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं। कुल्लुकुम मिन आदम, तुम्हारी एक ही पहचान है कि तुम आदम के बच्चे हो, आदम की औलाद हो। व आदम मिन तुराब, और आदम मिट्टी से बने। तुम काले हो तो भी आदम की औलाद हो, तुम गोरे हो तो भी आदम की औलाद हो, तुम अमीर हो तो भी आदम की औलाद हो, तुम गरीब हो तो भी आदम की औलाद हो, तुम अरबी हो तो भी आदम की औलाद हो, तुम अजमी हो तो भी आदम की औलाद हो, तुम सेहतमंद हो तो भी आदम की औलाद हो, तुम बीमार हो तो भी आदम की औलाद हो, तुम माजूर हो तो भी आदम की औलाद हो, तुम लंगड़े हो तो भी आदम की औलाद हो, तुम अंधे, कुल्लुकुम मिन आदम। कोई किसी को किसी पर कोई फौकियत नहीं, कोई फजीलत नहीं, तुम्हारी बस एक ही पहचान है कि तुम सब आदम के बेटे हो, और आदम मिट्टी से बने, और मिट्टी की सिफत है दबना। तो आदम की औलाद होने का तकाजा है कि आजिजी पैदा करो अपने अंदर, इनकिसारी पैदा करो अपने अंदर। हजरात, समाज में ये मुसावात और बराबरी का सबक जब तक नहीं पढ़ाया जाएगा समाज को, उस समाज को मिसाली नहीं कहा जा सकता। गौर कीजिए, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिसों पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब पर, आपके इर्द गिर्द रहने वालों में, आपकी मजलिस में रहने वालों में, जहां अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हुम जैसे अमीर सहाबा थे, वहीं आपके इर्द गिर्द रहने वालों में बिलाल हबशी, सुहैब रूमी जैसे गुलाम भी, गरीब सहाबा भी, नादार सहाबा भी। आपकी मजलिस में कोई इम्तियाज न था। समाज में मुसावात का तस्वुर रखना बहुत जरूरी है भाइयों। अगर आप चाहते हैं कि आपका समाज मिसाली समाज कहलाए, हर शख्स की इज्जत करो। सिर्फ अमीर की इज्जत करोगे, सिर्फ सियासतदानों की इज्जत करोगे, सिर्फ मालदारों की इज्जत करोगे, सिर्फ बंगले वालों की इज्जत करोगे, सिर्फ गाड़ी वालों की इज्जत करोगे, तो फिर तुम अच्छे मुसलमान नहीं कहला सकते। अच्छे मुसलमान तब कहलाओगे अमीर की तरह जब तुम गरीब की भी इज्जत करो, मालदारों की तरह मसाकिन की भी इज्जत करो, सेहतमंदों की तरह माजूरों की भी इज्जत करो। समाज का माहौल ऐसा होना चाहिए कि मुआशरे का एक एक फर्द महसूस करे, हाँ इस समाज में मैं भी कुछ वजन रखता हूं। एक माजूर भी महसूस करे, हाँ इस समाज में मैं भी कुछ वजन रखता हूं। एक बीमार भी महसूस करे, हाँ इस समाज में मेरी भी कोई कीमत है। एक गरीब भी महसूस करे, हाँ इस समाज में मेरी भी कोई हैसियत है। उसको कहते हैं मिसाली समाज। जिस मुआशरे में सिर्फ दौलतमंदों के सर गिने जाते हो, अमीरों के सर गिने जाते हो, उस मुआशरे को मिसाली मुआशरा कहना इंसानियत की तौहीन है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कायम करता जो मुआशरा था, उस समाज का मुताला करके देखो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा के साथ कैसा मुसावी सुलूक किया। आपने सबके दिल जीते, आपने सबको मुतासिर किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब गिरविदा हुए। क्या गुलाम, क्या आजाद, क्या मर्द, क्या औरत, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या गोरे, क्या काले, क्या अरब, क्या अजम, सब आप पे फिदा थे, सब आपसे उतना ही करीब थे। इब्ने माजा में देखिए, वो एक हदीस आई है, आपने सुनी होगी ये हदीस, फिर भी सुनाता हूं मैं। ये वाकया बताता है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसावात का कितना आला मेयार समाज में कायम कर रखा था, और अमीरों की तरह गरीब भी आपकी नजरों में किस कदर गिने जाते थे, किस कदर मोहतरम थे। एक सहाबी थे जिनका नाम था हजरत ज़ाहिर रज़ी अल्लाह अन्हु। कौन है ये हजरत ज़ाहिर? मदीने के करीब एक देहात था, खेड़ा था, उस देहात के रहने वाले गरीब सहाबी, और अल्लाह ने इन्हें बदशक्ल बनाया था। उतने मकबूल सूरत नहीं थे सहाबी। आप बताओ, जो शख्स देहाती हो, गरीब हो, बदशक्ल हो, कौन उसको गिनता है, कौन उसको शुमार करता है, कौन उसको अपने से करीब करता है। लेकिन कुर्बान जाइए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन सहाबी से बड़ी मोहब्बत थी,
वो सहाबी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उतनी ही मोहब्बत किया करते थे। कभी अपने देहात से मदीना आते, तुम देहात की तरकारियां और कारियां लाके प्यारे नबी को हदिया किया करते थे, और जब तक मदीने में रहते प्यारे नबी उनकी मेहमान नवाजी करते, और जब मदीने से वापस अपने देहात जाते प्यारे नबी भी उन्हें तोशा ओशा बन के नवाज के भेजा करते थे। एक मर्तबे की बात है, हजरत ज़ाहिर रज़ी अल्लाह अन्हु मदीने की मार्केट में खड़े हुए कुछ बेच रहे थे, बिजनेस कर रहे थे। ये गरीब सहाबी, ये नादार सहाबी, ये देहाती सहाबी मदीने के बाजार में खड़े बिजनेस कर रहा है, कोई चीज बेच रहे हैं, फरोख्त कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि ज़ाहिर है बिजनेस कर रहा है, तिजारत कर रहा है। आप पीछे से गए, खामोशी से गए, और पीछे से हजरत ज़ाहिर की आंखें आपने बंद कर ली, जैसे आंख मचोली का खेल खेला जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ाहिर की आंखें बंद कर ली। हजरत ज़ाहिर ने पहले तो कहा कौन है भाई, कौन है भाई? हजरत ज़ाहिर कहते हैं मुझे बहुत जल्द यकीन हो गया कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई दूसरा नहीं है। इस कदर अपनाने वाली शख्सियत, इस कदर मोहब्बत का सबूत देने वाली शख्सियत, ये प्यारे नबी ही हो सकते हैं। कहते हैं कि जब मुझे यकीन हो गया कि मेरी आंख बंद करने वाली शख्सियत वो नबी की शख्सियत है, तो मैं ऐसे ही खड़ा रह गया, बिना हरकत किए खड़ा रह गया, इसलिए कि प्यारे नबी का सीने मुबारक मेरी पीठ से लगा हुआ था। मेरी पीठ प्यारे नबी के मुबारक सीने से लगी हुई थी। मैं चाह रहा था कि नबी से कुर्बत की ये साथें तवील से तवील तर हो, दराज से दराज तर हो। प्यारे नबी को मालूम हो गया, अंदाजा हो गया हमारे नबी को, ये पहचान लिए हैं मुझे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़राए मजाक मार्केट वालों से कहा, आपने लोगों इस बंदे को मुझसे कौन खरीदेगा? आपने क्या कहा मार्केट वालों से? लोगों इस बंदे को मुझसे कौन खरीदेगा? यानी वो आए थे बिजनेस करने के लिए, प्यारे नबी ने मजाक में उनको खुद बिजनेस का सामान बना डाला। आपने मार्केट वालों से पूछा लोगों इस बंदे को मुझसे कौन खरीदेगा? हजरत ज़ाहिर ने कहा अल्लाह के नबी मुझे बेचकर आपको कुछ फायदा मिलने वाला नहीं है, इसलिए कि लोगों के नजदीक मेरी कोई कीमत नहीं। मुझे बेचकर आपको कोई फायदा मिलने वाला नहीं कि लोगों के नजदीक मेरी कोई कीमत नहीं। प्यारे नबी ने उन्हें फौरन जवाब दिया, अल्लाह के बंदे लोगों के नजदीक तुम्हारी कीमत हो ना हो, अल्लाह की नजरों में तुम बड़े कीमती हो। अल्लाह के नजदीक तुम बड़े कीमती हो। अल्लाह के पास बंदों के दराजात शक्लो सूरत से मुतय्यन नहीं होते, मालो दौलत से मुतय्यन नहीं होते, हसब व नसब से मुतय्यन नहीं होते, खानदानी शरफ से मुतय्यन नहीं होते। बंदों के मरातिब और दराजात का तयन अल्लाह के पास दिलों के तक़वे की बुनियाद पर होता है। इसीलिए आपने कहा कि ज़ाहिर दुनिया वालों की नजरों में तुम्हारी कीमत हो ना हो, अल्लाह की नजरों में अल्लाह के बंदे तुम बड़े कीमती हो। हज़रत एक वाक़िया है जो बताता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस मुआशरे के गरीब भी कितना करीब थे। आप जैसे अमीरों को अपनाया करते थे, गरीब सहाबा भी आपसे कितने नजदीक थे। इसलिए याद रखना समाज में मुसावात बहुत जरूरी है, और उसके लिए सबसे पहले ये मुसावात का निजाम, ये मुसावात का तस्वुर अपने खानदानों में लाओ। सभी रिश्तेदारों की इज्जत करो, अमीर और मालदार रिश्तेदारों की इज्जत करना, दावत पे दावत करना, गरीबों को साल साल तक मुड़ के भी ना देखना, ये अखलाक की तौहीन है। अपने खानदानों के निजाम को मुसावात की बुनियाद पर इस्तेमाल करो। इस्लामी मुसावात का सबूत पहले घर घर खानदान खानदान में दोगे तो फिर पूरे समाज में मुसावात का ये तस्वुर आम होगा। और हजरात, मुसावात के बाद मुआशरे की अखलाकी तरबियत का दूसरा तकाजा यह है कि मुआशरे के अफराद के दरमियान बाहमी उल्फत, मोहब्बत, उखुवत, भाईचारा, गमखारी, हमदर्दी की फजा हो, एक दूसरे के ताउन करने का जज्बा हो, हर शख्स को दूसरों के ताल्लुक से हेल्पिंग नेचर का हामिल होना चाहिए। खुद गर्ज ना बनो,
खुद गर्ज ना बनो। मोमिन खुद गर्ज नहीं हुआ करता है, मोमिन खुद गर्ज नहीं हुआ करता है। हम उस उम्मत के अफराद हैं जिस उम्मत का तारुफ ही है उखरिजत लिन्नास। ये उम्मत बर्पा की गई है इंसानियत के लिए, ये उम्मत बर्पा की गई है लोगों की भलाई के लिए। उखरिजत लिन्नास जिस उम्मत की पहचान है उस उम्मत के अफराद हैं हम। लिहाजा समाज और मुआशरे के अफराद के ताल्लुक से हमारे दिल में गमखारी का जज्बा, हमदर्दी का जज्बा होना चाहिए। और पूरे समाज को बाहम शीरो शकर कैसा होना चाहिए जानते हैं? लिसान नबूवत में कहा मसलुल मुमिनीन फी तवाद्दिहिम व तराहुमिहिम व तआतुफिहिम कमसलिल जसद इज़ा इश्तका मिन्हु उज़्वुन तदाआ लहु साइरुल जसद बिस्सहर वल हुम्मा। कि अहले ईमान की मिसाल आपस में एक दूसरे का दर्द बांटने में, आपस में एक दूसरे का दुख बांटने में, आपस में एक दूसरे की गमखारी में, आपस में एक दूसरे की हमदर्दी करने में अहले ईमान की मिसाल एक जिस्म वाहिद की मानिंद है। कि अगर जिस्म के एक उज़्व को तकलीफ होती है तो सारा बदन सोता नहीं है उस एक उज़्व की तकलीफ की वजह से। इसलिए भाइयों जानते हो, मिसाली समाज के मिसाली फर्द अगर हो, किसी मजबूर को देखने के बाद आपको नींद नहीं आनी चाहिए। किसी मिस्कीन की जरूरत आपके इल्म में आने के बाद आपकी नींद हो जानी चाहिए कि जब तक इसको खिला ना दूं, पिला ना दूं, इसकी जरूरत पूरी कर ना दूं, मुझे चैन नहीं आएगा। ये वो अखलाक है जिन अखलाक की बुनियाद पर प्यारे नबी ने माशरे के अफराद की तरबियत की है। माई आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा, ये हदीस भी बड़ी मशहूर हदीस है लेकिन वाकई बड़ा सबक रखती है हदीस। माई आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती, एक मरतबे एक गरीब औरत आई, अपनी दो बेटियों को लेकर, दो बच्चियों को लेकर आई। वो खुद भूखी थी, दोनों बच्चियां उसकी भूखी थी। आके उसने मुझसे कहा कि माई हम भूखे हैं, खाने के लिए कुछ दे दो। माई आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है, मैंने घर में तलाश किया, तलाश बिस्यार के बाद पूरे घर में सिर्फ 3 खजूरें मिली। ये हमारे नबी के घर की सूरत हाल है। आज का गरीब से गरीब झोंपड़ी में जाओ, कितना कुछ स्टोर करके रखता है। जिस नबी से आसमान से आने वाली वही कहती थी कि आप चाहें तो बहुत पहाड़ सोने का बना दें आपके लिए, और उस नबी की नादारी का यह आलम कि घर में तलाश करने के बाद मुश्किल से 3 खजूरें मिलती हैं। 3 खजूरें मिली। हजरत आयशा फरमाती है रज़ी अल्लाह अन्हा, मैंने वो 3 खजूरें उस गरीब माँ के हवाले कर दी। उस गरीब माँ ने 2 खजूरें अपनी दोनों बच्चियों को दे दी जो भूखी थी, 1 खजूर अपने लिए रख लिया। दोनों बच्चियां अपने अपने हिस्से की खजूर खा चुकी, और जब माँ अपने हिस्से की खजूर खाने के लिए उसने खजूर को मुंह में रखा, बच्चियों ने कहा कि माँ वो भी हमें दे दे। बच्चियों ने जैसे ही वो खजूर मांगी, माँ तो माँ होती है, बच्चों का पेट भर जाए तो वो भूखी रहकर भी उसका पेट भर जाता है। लुकमा जिसे खजूर जिसे लुकमा बना चुकी थी उसे मुंह से निकाला, 2 टुकड़े किए, आधी खजूर इस बच्ची को, आधी खजूर इस बच्ची को, और खुद भूखी रह गई। माई आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ये जज्बाती मंजर देखकर बहुत दुखी हुई, मुतासिर हुई। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने प्यारे नबी से अर्ज किया, अल्लाह के नबी एक गरीब खातून आई थी अपनी 2 भूखी बच्चियों को लेकर, उसने खाने के लिए कुछ मांगा, 3 खजूरें मिली, 2 खजूरें उसने अपनी बच्चियों को खिला दी, और अपने हिस्से की खजूर जब उसने खानी चाहिए बच्चियों ने वो भी मांग लिया। माँ भूखी रह गई और उस खजूर को भी अपनी बच्चियों को खिला दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आयशा जानती हो उस एक खजूर ने उस मां को नारे जहन्नम से आजादी दिला दी। उस एक खजूर ने उस मां को नारे जहन्नम से आजादी दिला दी। जज्बे गमखारी की अहमियत शरीयत की नजर में, गरीबों से हमदर्दी की अहमियत शरीयत की नजर में। याद रखना मोहतरम भाइयों, दुनिया की बहुत बड़ी दौलत क्या है कि तुम्हारे दिल की धड़कनों में गरीबों का दर्द होना चाहिए। इकबाल ने कहा, तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की,
तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में। प्यारे नबी ने दुआ की, अल्लाह अकबर। अल्लाह ने आपको सिखाई ख्वाब में दुआ, क्या क्या मांगना है अल्लाह ताला से। हमने बहुत सारी चीजें मांगी होगी, अल्लाह जब नबी को ख्वाब में एक दुआ सिखाता है तहज्जुद की हालत में, उसमें क्या मांगने की तालीम होती जानते हैं? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़िअलल खैरात व तर्कल मुनकरात व हुब्बल मसाकीन। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे अच्छे कामों के करने की तौफीक मांगता हूँ, बुरे कामों से बचने की तौफीक मांगता हूँ, और ऐ अल्लाह मैं तुझसे समाज के गरीबों की मोहब्बत मांगता हूँ। मेरे दिल में समाज के गरीबों के ताल्लुक से मोहब्बत डाल दे। ये कितनी बड़ी बात है। माशरे में जब तक इंसानों के साथ, मजबूरों के साथ हमदर्दी और गमखारी का ये उन्सुर न होगा, माशरा मिसाली नहीं कहलाएगा। और जब ये जज्बा पैदा हो जाए तो आप जानते हैं शरीयत ने इसको किस नजर से देखा है। बुखारी की हदीस में फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्साई अलल अर्मिलति वल मिस्कीन कल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह। अस्साई अलल अर्मिलति वल मिस्कीन, माशरे की बेवाओं के सिलसिले में कोशिश करने वाला, माशरे के मिस्कीनों गरीबों के सिलसिले में कोशिश करने वाला, ये अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले की मानिंद है। अल्लाह अकबर। इसलिए मोहतरम भाइयों, माशरे की अखलाकी तरबियत का पहला तकाजा तो मुसावात है, दूसरा तकाजा जज्बा हमदर्दी व गमखारी माशरे के कमजोर और गरीब तबकात के ताल्लुक से। आपने कहा शर्रु ताम तामुल वलीमा युदा इलैहा मन यअबा व युमनउहा मन यअतीहा। आपने कहा बदतरीन दस्तरखान है वो, बदतरीन दावत है वो, बदतरीन वलीमा है वो, जहां नहीं आने वाले को तो बार बार बुलाया जाता है और जो आना चाहता है उसे रोका जाता है। क्या मतलब? यानी बदतरीन दस्तरखान है वो जिसपे सिर्फ अमीरों और मालदारों को बुलाया जाए और आने वाले गरीब को रोका जाए। गरीब आ जाएगा ना, हमारी शान घट जाएगी कि उसका इंट्रोडक्शन कराना पड़ेगा कि ये भी हमारा रिश्तेदार है, इससे हमारा रिलेशनशिप है, हमारी शान घट जाएगी। इसलिए हम नहीं चाहते कि गरीब रिश्तेदार आए, और वो जो अमीर है उससे दूर की भी रिश्तेदारी मुश्किल से नहीं है। 10 फोन करेंगे, वो लाख नखरे दिखाएगा, 100 फोन करेंगे और किसी तरह उसको बुलाने की कोशिश करेंगे। आपने कहा बदतरीन दस्तरखान है ये, बदतरीन दावत है ये, बदतरीन मेहमान नवाजी है ये। समाज और मुआशरे के ज़ईफों से, यतीमों से, मिस्कीनों से, बेवाओं से, मजबूरों से हमदर्दी पैदा करो। आप मिसाली इंसान हो, आपका घराना मिसाली, आपका खानदान मिसाली और पूरा समाज मिसाली बनेगा अगर समाज की इज्तिमाई किरदार में ये सिफत और ये उन्सुर आ जाए। और हज़रात एक और बात हम बताते चले, मिसाली समाज की जो अखलाकी बुनियादें हैं उसमें से एक अहम बुनियाद ये भी कि समाज में हक तलफी नहीं होनी चाहिए। हकदार को उसका हक मिलना चाहिए और आसानी से मिलना चाहिए। कोई किसी का हक ना मारे, न मर्द औरत का हक मारे, न औरत मर्द का हक मारे, न शोहर बीवी का हक मारे, न बीवी शोहर का हक मारे। मुआशरा हक तलफी से आजाद होना चाहिए, हर हकदार को उसका हक मिलना चाहिए। भाई ऐसे होने चाहिए जो बहनों को मीरास में उनका पूरा पूरा हक देते हों। शोहर ऐसे होने चाहिए जो अपनी बीवियों का हक मेहर पूरा पूरा अदा करते हो। और हक तलफी की बात आई ना, माफ कीजिए हम कहना चाहेंगे बेचारी औरतें हमारे समाज की बड़ी मजलूम है। हक तलफी की अगर बात करें तो औरत बहुत मजलूम है इस मामले में। अरब की औरत और हिंदुस्तान की औरत में हमने एक फर्क देखा। अरब की औरत अपने हुकूक से वाकिफ है, हुकूक से वाकिफ है, जानती है कि औरत होने की हैसियत से मेरे क्या क्या हक हैं,
माँ होने की हैसियत से मेरा क्या हक है, बहन होने की हैसियत से मेरा क्या हक है, बेटी होने की हैसियत से मेरा क्या हक है, बीवी होने की हैसियत से मेरा क्या। अरब की औरत अपने हुकूक से वाकिफ है और जरूरत से ज्यादा वाकिफ है। और न सिर्फ वाकिफ है, अरब की औरत अपने हुकूक को मर्दों से मनवाती भी है। और बेचारी हमारे मुल्क की औरत हुकूक मनवाना तो कुछ, अपने हुकूक से वाकिफ भी नहीं यहाँ की औरत। बुनियादी हक जिसे हक में महर कहा जाता है, कितने लोग हैं शादी में लिखवा दिया, इंतकाल बिस्तरे मर्द पे पहुंच गए और आज तक बीवी का हक में महर नहीं दिया। अब नतीजे में क्या हुआ भाई, एक रिवायत, एक रस्म ने जन्म लिया समाज में। क्या है कि शोहर का इंतकाल हो गया और शोहर ने महर नहीं दिया, तो लिहाजा एक नई रस्म ने जन्म लिया जिसे क्या कहा जाता है, महर बख्शवाने की वह रस्म। कि जब शोहर का इंतकाल हो जाता है ना, शोहर ने महर नहीं दिया है, तो क्या करते हैं, शोहर को जब गुस्ल दे दिया जाता है, उसका जनाजा उठने से कबल बीवी को पकड़ के लाया जाता है और उसे शोहर की लाश के सामने खड़े होके ये कहना पड़ता है कि आपने मुझे जो शादी के मौके पे महर लिखा था दिया नहीं है, आज मैं वो महर माफ कर रही हूं, माफ करके आपको अल्लाह के हवाले कर दूं। कैसी जालिमाना रिवायत है ये, कैसी जालिमाना रस्म है ये। बेचारी पहले ही से शोहर की वफात के सदमे से दो चार है, उसे शादी के दिन की याद दिलाते हो, उसे शादी के दिन की याद दिलाते हो। इतनी भी हसासियत हमारे अंदर नहीं किया। हाँ, महर बख्शवाना उछवाना ये कोई रस्म इस्लाम में नहीं। हाँ, सही तरीका क्या है, अगर वाकई किसी शोहर का इंतकाल हो गया और उसने महर नहीं दिया है, तो सही तरीका क्या है, शोहर की तदफीन के बाद उसके माले विरासत में सबसे पहले महर अदा किया जाएगा। समझ रहे, बखशवाना खशवाना कुछ नहीं। शोहर के माल विरासत में सबसे पहले बीवी का जो महर था वो अदा किया जाएगा। महर अदा करने के बाद जो माल बचता है वो बाकी वारिसीन में तकसीम होगा और उसमें भी बीवी को बीवी के हिस्से से उसका हिस्सा फिर मिलेगा दोबारा। ये होना चाहिए। तो समाज उसे कहते हैं, मिसाली मुआशरा उसे कहते हैं जहां हकदार को उसका हक दिया जाए, हक ना मारा जाए, हक तलबी ना की जाए। और हजरात, जब अखलाकी तरबियत की हम बात कर रहे हैं तो माशरे की अखलाकी तरबियत का मौजू उस वक्त तक अधूरा है जब तक कि हम इस पहलू से भी गुफ्तगू ना कर ले कि मिसाली समाज और मिसाली मुआशरे के लिए जरूरी है कि वो पाकीज़ा माहौल रखता हो। बेहयाई, बरहनगी, उरियानियत, नंगापन, मौसीकी, म्यूजिक, डांस, फहश गाने, फहश अशआर, ये सब मुआशरे में नहीं होने चाहिए। औरत, मिसाली मुआशरा वो है जहां की औरत घर के अंदर रहकर अपना रोल अदा करती हो। वक़र्न फी बुयूतिकुन वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। औरत से कहा गया तुम्हारा असल मैदान कारजार तुम्हारा घर है। औरत अपने घर में रहकर वो कारनामे अंजाम देती है जो कारनामे बड़े बड़े मर्द कारजार हयात में अंजाम नहीं दे सकते। औरत का किरदार गैर मामूली किरदार है, वो बुनियाद का वो पत्थर है जो दिखने में नहीं आता है, वो किरदार औरत अदा करती है। माशरे की औरत को मिसाली माशरा वो है जहां की औरत बेपर्दा ना निकले, बेहिजाब ना निकले, जिसकी हया महफूज हो, जिसके शर्म महफूज हो, जिसकी गैरत महफूज हो। माशरे में अखलाकी बुराइयां तब फैलती है जब औरत बेहया, बेपर्दा, बेहिजाब होकर निकलती है। इसलिए आप कुरान में मुलाजा कीजिए, कुरान जहां भी सिफात का तज़किरा करता है पहले मर्द को लाता है बाद में औरत को, पहले मर्द बाद में औरत। लेकिन जब जिना की बात आई ना,
जब जिना की बात आई पहले औरत का जिक्र किया, बाद में मर्द का जिक्र किया। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअता जल्दा। मर्द से पहले औरत का जिक्र करके कुरान ये बताना चाहता है मुआशरे और समाज में उरियानियत, बरहनगी और जिना के फैलाव का सबब औरत बनती है। जब वो बेहिजाब होकर निकले, बेगैरत होकर निकले, बेशरम होकर निकले, बन सवर कर निकले, खुशबू लगा कर निकले और फूल लगा कर निकले, पाउडर लगा कर निकले। क्या मतलब है? जिसको घर के अंदर शोहर के लिए सजना नहीं आता, जिसको घर के अंदर शोहर के लिए बनना संवरना नहीं आता, घर से बाहर निकलते हुए सजने का मतलब क्या है? उसका ख्याल मालूम हो रहा, उसकी फिक्र मालूम हो रही है, वो फिक्र का जिना कर रही होती है। इसलिए मिसाली समाज वो है जहां की औरत बाहया, बापर्दा, बागीरत और बाज़मीर और बाहिजाब हुआ करती है। इस्लाम ने इस सिलसिले में कितना हसास मिजाज दिया जानते हैं आप? इस्लाम कहता है कि अल्लाह अकबर, अजनबी मर्दों की मजलिस में किसी अजनबी औरत का तज़किरा भी नहीं होना चाहिए। अजनबी मर्द है, क्या जरूरत है कि किसी ज़ैनब के बारे में, किसी फातिमा के बारे में, किसी आयशा के बारे में बैठ के गुफ्तगू करे? ये बेशर्मी है, ये बेहयाई है, ये बेगैरती है। अहद नबूवत में एक वाकया हुआ। वाकया क्या हुआ? एक था मुखन्नस। मुखन्नस मर्द और औरत से हटकर जो तीसरे सिंफ होती है, जैसे हमारी साउथ की जबान में बड़ा खराब लफ्ज है, हिजड़ा बोलते हैं। एक मुखन्नस था अल्लाह के नबी के जमाने में। अब चूंकि मुखन्नस था, आता जाता था, औरतों में भी आता था। एक दिन क्या हुआ, प्यारे नबी की ज़ौजा उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा, उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा के हुजरे में उम्मे सलमा के भाई मौजूद है, अब्दुल्ला बिन अबी उमैया, उनके साथ ये मुखन्नस भी मौजूद है। प्यारे नबी घर में दाखिल हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मुखन्नस की गुफ्तगू सुन ली। क्या बोल रहा था ये मुखन्नस? उम्मे सलमा के भाई से कह रहा था, या अब्दुल्ला, इन फतहल्लाहु अलैकुम अत्ताइफ फअलैका बिब्नति गैलान फइन्नहा तुक़बिलु बिअरबईन व तुदबिरु बिज़मान। ताकि है अब्दुल्ला सुन, कल अगर ताइफ फतह हो जाए ना, तो ताइफ में एक औरत है, गैलान की बेटी है, वो इतनी मोटी है, ऐसी है, वैसी है, आती है तो 4 शिकने पड़ती है, पर जाती है तो 8 शिकने पड़ती है, उसको हासिल करने की कोशिश करो। नऊज़ुबिल्लाह। यानी प्यारे नबी ने देखा ये मुखन्नस एक मर्द के सामने एक अजनबी औरत की मुआसफात और उसकी सिफात का जिक्र कर रहा है, वो ऐसी है, ऐसी है, और उभार रहा है कि ताइफ फतह हो तो उसको पाने की कोशिश करना। प्यारे नबी को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, अल्लाह अकबर, कि उस दिन से आपने मना कर दिया कि ये शख्स जहां औरतें हों वहां आज से इसका दाखिला मना है, दाखिल नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, आपने कहा ऐसे लोग जो औरतों को गौर से देखते हैं और मर्दों के सामने जिक्र करते हैं ये ऐसी है, ये ऐसी है, ये समाज में रहने के काबिल नहीं है, ये सड़ी हुई जहनियत के लोग हैं। आपने क्या किया जानते हैं? नबी रहमत ने क्या सजा दी उसको? कहा कि तुम मदीने में रहने के लायक नहीं, निकल जाओ मदीने से बाहर, निकल जाओ मदीने से बाहर। आपने उसको शहर बदर किया, शहर से बाहर निकाला, मदीने के बाहर एक देहात में रहता था। रावी हदीस कहते हैं हफ्ते में एक दिन मदीने में आता था, भीख मांग के हफ्ते भर की ग़िज़ा जमा करके भाग जाता था। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नबी रहमत है, इतनी सख्त सजा आपने दी, क्यों? हाँ, शहर बदर किया आपने, क्योंकि इतनी घिनौनी हरकत है, घटिया हरकत है कि अजनबी औरत को देखना और अजनबी मर्दों के सामने तस्करा करना। आज ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे आगे, आपके आगे। मोहतरम भाइयों, आज जमाने की आंखों में हया ना रही, आज अपनी गीरत की हिफाजत करना बहुत बड़ा मसला है। माफ कीजिए, अक्सर मर्द बेगैरत है,
इस जुमले पर मुझे माफ कीजिए, अक्सर मर्द बेगीरत हैं, बेपर्दा कल जो आई नजर चंद बीबियां, अकबर जमीन गीरत कौमी से गड़ गया, पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अकल पे मर्दों के पड़ गया। अकबर इलाहाबादी का बहुत मशहूर रुबाई है उनकी। क्यों? जो औरतें बेहया बेहिजाब जाती हैं, वो इस बात की दलील है कि अगर इसका कोई भाई है तो भाई बेगीरत है, बेशरम है। अगर इसका कोई शोहर है तो शोहर बेगीरत है, बेशरम है। अगर इसका कोई बाप है तो बाप बेगीरत है, बेशरम है। समझ रहे? औरत बेहिजाब हो गई, बेहया हो गई, बेपर्दा हो गई, और माफ कीजिए एक जिनसी हैवान बना के रख दिया समाज में। तो हमारा समाज, हमारा मुआशरा उस वक्त तक मिसाली नहीं कहला सकता, मिसाली नहीं हो सकता, जब तक के भाइयों इन अखलाकी बुराइयों से मुआशरा पूरी तरह से पाक साफ शफाफ क्यों ना हो। गुफ्तगू के इख्तिताम पर मैं जरूर समझता हूं ये मौजू अधूरा होगा इस पहलू को जिक्र किए बगैर कि देखो, हम और आप एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी है, 80% नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी के दरमियान हम एक माइनॉरिटी और अकलियत की हैसियत से जी रहे हैं, और हम मिसाली मुआशरे की तामीर की बात कर रहे हैं। तो याद रखना, जब तक हम ये 80% मेजॉरिटी से हमारे ताल्लुकात की नौइयत पर गुफ्तगू नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम मिसाली समाज और मिसाली मुआशरे की तामीर में नाकाम रहेंगे। जब तक उनका ताउन हमें ना मिले और हम उनके साथ ताउन ना करें। पिछली तकरीरों में भी तस्वीर आया, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा क्या सबक देती है कि जब हम मखलूक मुआशरे में रहते हैं जहां दूसरे मकीदे के, दूसरे मजाहिब के मानने वाले हो, इस्लाम कहता है कि इंसाफ को कायम करने में, अदलो इंसाफ को बरतने में, जुल्म को खत्म करने में, मजलूम को उसका हक दिलाने में, जालिम का हाथ पकड़ने में, गैर मुस्लिम का साथ देना, गैर मुस्लिम का साथ लेना जायज है। हिल्फुल फुजूल जो अंजुमन कायम हुई थी, ये अंजुमन गैर मुस्लिमीन ने कायम की थी, प्यारे नबी उसके मेंबर बने और उसमें आपने अपना कीमती ताउन पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये उसवा बताता है कि हम जो इस मुल्क में रहते हैं, हमारे लिए बहुत जरूरी है कि सोशल सर्विस, खिदमत खल्क के कामों में यहाँ की जो गैर मुस्लिम अवाम है, अभी भी मैं बताता हूं, काफी कुछ कोशिशों के बावजूद भी यहाँ की नॉन मुस्लिम की मेजॉरिटी आज भी अमन पसंद है, सुलह पसंद है, जो मुसलमानों के साथ अच्छे माहौल में जीना चाहती है। समझ रहे? हमें बहुत जरूरत है कि इस माहौल को बरकरार रखें और नफरत का मुकाबला मोहब्बत से करें। इदफा बिल्लती ही अहसन फइज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम। बुराई का मुकाबला भलाई से करो, बुराई का जवाब भलाई से दोगे तो तुम्हारा जानी दुश्मन भी एक दिन जिगरी दोस्त बन जाएगा। हजरात, प्यारे नबी की इस तालीम को अपनाना बहुत जरूरी है। यहाँ खिदमत खल्क के कामों में, जालिम का हाथ पकड़ने में, मजलूम का साथ देने में हमें अपने गैर मुस्लिम बरादरान वतन के साथ ताउन करना चाहिए और ताउन लेना चाहिए, उनकी मदद करना चाहिए, उनकी मदद लेना चाहिए। अभी भी आमतौर पर हिंदुस्तान के हर शहर में महकमा पुलिस क्या करता है, पीस कमेटियां बनाता है, पीस कमेटी बनाता है। हर सिटी के लेवल पर या हर सिटी में कई पुलिस स्टेशन होते हैं, पीस कमेटियां बनती हैं। हर समाज, हर कौम और हर मजहब के कुछ नुमाइंदा अफराद लिए जाते हैं और उनको जिम्मेदारी दी जाती है कि तुम अपने अपने समाज के लोगों को कंट्रोल में रखना। हमारे लिए बहुत जरूरी है ऐसे कामों में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, पीस कमेटी का मेंबर बने, समाज को इंसाफ फराहम करने में अपना रोल अदा करें, जालिम का हाथ पकड़े, मजलूम को उसका हक दिलाए। और इस्लाम की तालीम क्या है? जब जालिम और मजलूम की बात आ जाती है ना, जालिम और मजलूम की जब बात आती है, इस्लाम क्या कहता है मालूम? कि अगर कोई मुसलमान किसी काफिर पे जुल्म करे, कोई मुसलमान किसी गैर मुस्लिम पे जुल्म करे,
اور وہ غیر مسلم جس نے ظلم سہا ہے وہ بد دعا کرے تو اس مسلمان کو اس غیر مسلم کی بد دعا لگ جائے گی۔ اللہ کے پاس دعا کی قبولیت کے لیے قانون الگ ہے، بد دعا کی قبولیت کے لیے قانون الگ ہے۔ قبولیت دعا کے لیے ایمان شرط ہے، دعا کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے۔ دعا صرف مومن کی قبول ہوگی، دعا صرف موحد کی قبول ہوگی، بد دعا ہر مظلوم کی قبول ہوگی، وہ ہندو ہو، وہ مسلم ہو، وہ کرسچن ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ تو ظلم شریعت کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے، لہذا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ہندوستان کے اس سماج میں انصاف کے علمبردار بنیں، ظلم نہ کرے، ظالم کا ساتھ نہ دے، ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دے، کہ ہمارے نبی کی تعلیم تھی انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم ہو تب بھی، مظلوم ہو تب بھی۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی، ہمارا بھائی مظلوم ہو تب اس کی مدد کرنے کے معنی تو سمجھ میں آ رہا ہے، ہمارا بھائی ظالم ہو تب اس کی مدد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے کہا ظالم کی مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے ظلم کرنے سے روکو، ظلم کرنے سے منع کرو۔ تو حضرات یہ آخری نقطہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میں اپنی گفتگو کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے انہی چند نکات پر سمیٹتا ہوں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم اس نے آج ہمیں اس اجلاس میں جس طرح کتاب و سنت کی باتیں سننے کے لیے اس نے اکٹھا کیا، جمع کیا، کل روز قیامت محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اسی طرح جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے، اللہم آمین۔ اور گفتگو کے اختتام پر منتظمین اجلاس کا میں شکر ادا کرتا ہوں اور ذیلی جمعیت الحدیث کے تمام ذمہ داروں کا شکر ادا کرتا ہوں اور خصوصاً ہمارے بھائی عفان عمری کا شکر ادا کرتا ہوں بہترین انتظامات کے لیے اور ایک بہترین اور کامیاب پروگرام کے لیے۔ اللہ رب العزت آپ سب کی محنتوں، کوششوں، کاوشوں کو قبول فرمائے اور انہیں ثمرآور بنائے، اللہم آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔